طالبان سب کو ساتھ ملا کر امن بحال کر رہے ہیں، دنیا ان کی مدد کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں طالبان نے عام معافی دے دی، انسانی حقوق کے علم بردار بن گئے، کہہ دیا کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا یہی چاہتی تھی، اب انہیں اور کیا چاہیے؟ اب خدشات کس بات کے؟ دنیا کوشش کرے کہ افغانستان میں امن بحال ہو جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا فیصلہ کر لیا، اب ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی۔ سوویت یونین کے خلاف امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، سوویت یونین کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ہمیں چھوڑ دیا اور پابندی لگا دی۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے پھر کہا پاکستان کی ضرورت ہے، ہمیں پھر افغانستان میں جنگ کا حصہ بنا دیا گیا۔ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کسی جنگ میں اتحادی ملک پر ہی ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے باہر خودکش حملہ اور کار بم دھماکہ، بچوں سمیت 13 افراد جان سے گئے، 5 امریکی فوجیوں اور طالبان سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 60 افراد زخمی، امریکی عہدیدار نے تصدیق کر دی، کہا ایئرپورٹ پر خودکش دھماکہ داعش کی جانب سے کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور آسٹریلیا کی اپنے شہریوں کو کابل ایئرپورٹ سے دور رہنے کی ہدایت۔ دھماکے کے بعد امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات ملتوی، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ جرمن وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ داعش کے خودکش حملہ آوروں کی بڑی تعداد کابل میں داخل ہو رہی ہے۔ 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، یہ جو مافیا ہے، انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس دی، میں نے بھی فوج تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر۔ عدلیہ ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک مافیا ہے جو فوج پر تنقید کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے حکومت ختم کر دو۔ میں نے بھی ماضی میں فوج پر تنقید کی، عدلیہ پر بھی تنقید کی ہے، میں نے تنقید غلطیوں پر کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا پی ٹی آئی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے مرکزی تقریب سے خطاب، کہا 3 سالوں میں سب سے مشکل کام دوسرے ملکوں سے جا کر قرضہ مانگنا تھا۔ ورلڈ بینک نے کرونا وبا احساس پروگرام کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ پاکستان میں جنسی جرائم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، مینار پاکستان پر پیش آنے والا واقعہ پوری قوم کے لیے باعث شرم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بچوں کی کردار سازی اور تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ تقریب میں حکومت اور پی ٹی آئی کی کارکردگی پر مبنی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ تقریب میں گورنر سے عمران اسماعیل نے پارٹی ترانہ سنایا، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے بھی آواز کا جادو جگایا۔ عمران خان کی باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور کارکردگی صفر۔ عمران خان نے 3 سالوں میں ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ عمران خان نے مہنگائی کو آسمان پر پہنچا کر لوگوں سے روزگار چھین لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی جوابی تیر اندازی، کہا پاکستان کو دنیا میں تنہائی کا شکار کر دیا۔ 3 سالوں میں نئے پاکستان میں صرف مافیا کو فائدہ ہوا، آٹا چور اور چینی چور ترقی کر گئے، عوام قطاروں میں کھڑے ہیں، عوام اب ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ 30 سال حکومتیں کرنے والے اپنا منہ چھپا رہے ہیں۔ عمران خان کی واحد حکومت ہے جو 3 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے اپوزیشن صرف یہی کہتی ہے کہ معیشت برباد ہو گئی، یہ نہیں بتاتے گندم اور گنے کی قیمت میں اضافے سے کسان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ فاروق حبیب بولے عمران خان کو 70 سال کا کچرا ملا، 3 سال میں درست سمت کا تعین کیا، آئندہ 2 سال میں باقی چیزوں میں فاسٹ ٹریک پر بہتری لائیں گے۔ پاکستان نے افغانستان سے انخلا میں مدد کی امریکہ اور نیٹو کی درخواست منظور کر لی۔ امریکی سفارت خانے نے فوجی طیاروں کے ذریعے 3 کیٹیگریز میں مسافروں کو ٹرانزٹ سہولت دینے کی درخواست کی۔ کیٹیگریز میں امریکی سفارتکار اور شہری، مختلف ممالک کے شہری اور افغان باشندے شامل۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر طیاروں کی لینڈنگ کا آغاز آج سے ہو گیا۔ 31 اگست تک 3000 مسافر اسلام آباد پہنچیں گے۔ پروازیں کراچی میں بھی لینڈ کریں گی۔ کم از کم 8 پروازوں کے مسافر 21 روز تک ٹرانزٹ قیام بھی کر سکیں گے۔ ترکی نے افغانستان سے فوجی انخلا شروع کر دیا۔ ترک فوجیوں کا پہلا قافلہ انقرہ پہنچ گیا۔ قافلہ پہلے ترکش ایئر لائن کے طیارے سے کابل سے براستہ اسلام آباد انقرہ پہنچا۔ بیلجیم، نیدرلینڈز اور ڈنمارک نے انخلا روک دیا۔ فرانس کا بھی انخلا روکنے کا اعلان۔
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैज ईसा का अस्कुद नोटिस वापस ले लिया। पैरामीटर्स भी तय कर दिए। अस्कुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। बेंच चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। कोई बेंच अस्कुद किसी को तलब कर सकता है, न रिपोर्ट मंगवा सकता है। अदालत का प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखने का हुक्म। बेंचेस की जानिब से लिए गए तमाम नोटिस पर समाअत मामूल के मुताबिक होगी। सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने अस्कुद नोटिस लिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल का राबता, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने आलमी नुमाइंदों के इनखला में मुआवनत से आगाह किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मुश्तरका सियासी तस्फिया ही अफगान मसले का हल है। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म की सदर यूरोपीय काउंसिल को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। अफगानिस्तान में अवामी मकामात पर मौसीकी पर पाबंदी होगी। ख़वातीन को 3 दिन से ज़ायद के सफ़र पर महरम के साथ जाना होगा। तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, ख़वातीन को स्कूल, कॉलेजेस और दफातर में काम करने की इजाज़त होगी। हम माजी भूल कर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को अफगान सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराना गलत है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी मुआवनत करे। इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान की मदद की जाए। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान ने अब तक अफगानिस्तान से 7,000 से ज़ायद अफराद को निकालने में मदद की। बड़े पैमाने पर खतरे से निपटने के लिए सलाहियतों को मजीद निखारना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बहावल नगर गैरिजन के दौरे पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है, आर्मी चीफ ने हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की जंगी मशक़ें भी देखी। सिपा सलार का जवानों की तरबियती हरबी तैयारियों और सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुलेमान की सेक्टर का दौरा भी किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशंस तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों की ऑपरेशन तैयारियों और अज़्म को सराहा। एहसान मानी की बतौर चेयरमैन PCB मजीद काम करने से माजरत। नए चेयरमैन के लिए रमीज राजा मजबूत उम्मीदवार। वजीर आजम ने रमीज राजा को PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए नामजद कर दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चंद दिन में चेयरमैन का इंतखाब करेगा। मुतवक्का चेयरमैन PCB रमीज राजा क्रिकेट की बेहतरी के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की समत तब्दील करूंगा। बेहतरीन चीजें सामने लाना पहली तरजीह होगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन सिंध का 7 सितंबर से रोजाना समाअत का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और AG सिंध को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी मुआवनत तलब करेगा। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, 12 करोड़ की जो तशहीरी मुहिम होती थी। CM हाउस का सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 45% बजट जो है वो रिड्यूस कर दिया। पंजाब में पहले 1 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 12 करोड़ की तशहीर होती थी। उस्मान बुज़दार ने वजीर आला हाउस का बजट 45% कम कर दिया। तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के माफियाज ने जमीनों पर कब्जा किया। पूरे सूबे में अब तक 1,80,000 एकड़ जमीन वागुजार करवाई जा चुकी है। लाहौर में ज्यादती का निशाना बनने वाली माँ बेटी ने बयान कलम बंद करा दिया। खातून ने बताया, वो दूसरी बार लाहौर आई थी, रास्तों का इल्म नहीं था। ड्राइवर और उसका साथी रिक्शा एक स्कीम में ले गए। मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर दोनों से ज्यादती की। कार सवार अब्बास के आने पर दोनों फरार हो गए। लाहौर के इलाका गुलबर्ग में लड़की से ज्यादती के वाक़े का मुकदमा थाना गालिब मार्केट में दर्ज। खातून के मुताबिक अहमद नामी शख्स ने नौकरी के इंटरव्यू के लिए होटल बुलाया, असलहे के जोर पर ज्यादती की। वजीर आला पंजाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुज़दार का कोटद्दू में शौहर की मौजूदगी में खातून से बदसलूकी के वाक़े का भी नोटिस, रिपोर्ट तलब।
मीनार पाकिस्तान पर खातून टिक टॉकर से बदसलूकी, मजीद 13 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। अब तक 144 मुल्जिमान शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किए जा चुके हैं। आयशा अकरम की DIG इन्वेस्टिगेशन से मुलाकात, कहा 4 लोगों को शनाख्त कर लिया है, तफ्तीशी अमल से मुतमईन हूँ। नूर मुकद्दम कत्ल केस, 6 मुल्जिमान की जमानत पर रिहाई का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम की एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने थेरेपी वर्क्स के मालिक और मुलाजिमीन की जमानत मंजूर की थी। सिंध पुलिस का साबिक SP जाकिर फफरानी मुबैना अगवाकार बन गया। गुलशन इकबाल कराची में कब्जे के फ्लैट में निजी टॉर्चर सेल बना लिया। टॉर्चर सेल में मकवी को बेलिबास करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जाकिर के कारिंदे ने मकवी से 10 लाख तावान मांगा। मकवी को जाली पुलिस मोबाइल में टॉर्चर सेल मुंतकिल किया गया। सिंध हुकूमत ने पानी की बदतरीन किल्लत पर SOS कॉल दे दी। सूरत हाल पर हंगामी आबपाशी का इरसा का हंगामी राब्ता, कहा सिंध को फौरी तौर पर पानी न मिला तो हालात बदतरीन हो जाएंगे। आबपाशी माहिरीन का कहना है कि सिंध को फौरी पानी न मिला तो अरबों की ज़राअत तबाह हो सकती है। सिंध हुकूमत की हंगामी हालात की कॉल पर इरसा का इजलास फौरी तलब, जल्द फैसला मुतवक्के। सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड का केस, B4U नामी कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की उबूरी जमानत खारिज। मुल्जिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फरार। नैब रावलपिंडी का B4U के दफ्तर पर छापा, गिरफ्तारी के लिए मजीद टीमें तश्कील दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 85 मरीज इंतकाल कर गए। 4553 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.4% रही। सिंध में 7.6, पंजाब में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 6.2 और बलूचिस्तान में शरह 5.8% रिकॉर्ड की गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, कोशिश है दिसंबर तक सूबे की 70% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लें। कराची के साहिल पर धंसे जहाज का गहरे पानी में जाने से इनकार। जहाज खींचने के लिए बांधे गए 3 रस्से टूट गए। ना तजर्बाकारी के बायस ऑपरेशन फिर नाकाम। जहाज निकालने की कार्रवाई अब आइंदा माह होगी। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर 1 अरब 95 करोड़ से जायद में नीलाम कर दिया गया। होटल फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदा। वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सुमरो कहते हैं, पाकिस्तान स्टील की निजकारी का होमवर्क मुकम्मल कर लिया। आइंदा कुछ रोज में निजकारी का ऐलान कर दिया जाएगा। PIA की निजकारी के बजाय तामीर नौ की कोशिश कर रहे हैं। कसूर में बरे सगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की मज़ार पर हाजिरी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद PCB का पॉडकास्ट जारी। खिलाड़ियों ने खामियों और खूबियों की निशानदही की। जमैका टेस्ट के हीरो शाहीन अफरीदी कहते हैं, जीत में सबने हिस्सा डाला। वेस्ट इंडियन कप्तान ने फवाद आलम की परफॉर्मेंस को सराहा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2119 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।